Start. Good morning, the student of class 9th. Very good morning, all of you. Welcome back, the SPS online classes. Okay, today we will continue with our second lecture. Okay, last class actually I told you, explain how we will divide a geometrical figure into two equal parts. Okay, कि how we will draw angles with the help of instrument. Okay, या फिर with the help of divider or maybe protractor or other kind of instrument. So today I will tell you now, okay, कि how will construct a triangle when the dimension of the triangle are given. Suppose the side of the triangle are given, or maybe angle of the triangle is given. In that case, how we will draw the triangle? We will take few questions from your exercise. Okay, the first question is that कि construct a triangle ABC. Okay, construct a triangle ABC. तो सपोज क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है. तो ट्राइंगल क्या कह रहा है? कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC इज अ ट्राइंगल. सपोज तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ ट्राइंगल रफली. हम क्या करेंगे? पहले रफ करेंगे, एक सिंपल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे. वी विल मेंशन ABC. ओके, तो ABC इज अ ट्राइंगल. अब क्या कह रहा है? इन विच BC इज 5 सेंटीमीटर. तो BC इज 5 सेंटीमीटर. ओके, एंड AB is 3.8 centimeter. AB is 3.8 centimeter and AC is 2.6 centimeter. 2.6 centimeter. Okay, this is the simple dimension of the triangle. So how we will decide कि which one is the base? Okay, base of the triangle. तो जब भी क्वेश्चन इस तरह कर रहे हैं, the largest side, the largest value of the triangle, that means जो भी largest value होगा उसका dimension का, this is the base of the triangle. Okay, जो largest value होगा, look at this, कि 5 centimeter is greater than 3.8 centimeter and 3.8 centimeter is greater than 2.6 centimeter. Look at this. The greatest value is 5 centimeter. Okay, so 5 centimeter we will consider as a base of the triangle. So suppose this is the 5 centimeter. Okay, it's a B and it's a C. Okay, it's a B and it's a C. So BC is the base of the triangle, and we will mention the dimension. BC is equal to 5 centimeter. Okay, now A, तो we have to decide the point A. अब look at this कि AB या फिर BA, it's the same thing. AB और BA it's the same thing. Okay, AB और BA is the same thing. AB और BA it's the same thing. Okay, B 3.8. तो BA is the 3.8. So we will take scale and we will measure 3.8 in a scale. Okay, so suppose that 3.8. Suppose it's a scale. It's a scale 1 2 3 4 5 जो भी हो. We will take 3.2, 3.6, 3.8. I will put that place and we will take a arc. हम लोग क्या करेंगे? स्केल पे 3.8 मेजर करेंगे and we will put at the B. Suppose B is the center and इसको एक arc ड्रॉ करेंगे. अब suppose that कि एक arc ड्रॉ हो जाएगा. Suppose this is the arc. This is the arc. Okay, this is the arc which is equal to 3.8 suppose. And AC और CA is the same thing. AC और CA is the same thing. तो CA equals to what? 2.6. तो again we will take a scale and measure 3.6. अब यहाँ पे बैठाएंगे. अब सपोज करो यहाँ पे बैठाएंगे C, यहाँ पे बैठाएंगे और इस आर्क को कहीं ना कहीं कट करेंगे. इस आर्क को क्या करेंगे? कहीं ना कहीं कट करेंगे. नहीं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक BC 5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट AB 3.8. तो स्केल पे AC मेजर करेंगे 3.8, B पे पुट करेंगे और एक आर्क लेंगे इस तरह से. ओके, और फिर अगेन C 2.6 मेजर करेंगे, फिर आर्क लेंगे यहाँ से, उसके बाद कट करेंगे. जहाँ पे ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट करेगा, दैट मीन्स दैट इज द पॉइंट, दैट इज द इंटरसेक्टेंस पॉइंट. जहाँ पे आर्क 1 एंड आर्क 2 इंटरसेक्ट करेगा, दैट इज द पॉइंट A. तो दिस इज द पॉइंट, इट्स द A हो गया. अब look at this. We'll join this line. It's a A, B, and it's a AC. Now ABC is the required triangle. Okay. Now ABC is the required triangle. Clear? Another question. कि construct a triangle ABC in which BC 4.8 and angle B 45 and angle C 75 डिग्री एंड मेजर एंगल A. अब क्या कह रहा है कि ABC एक ट्राइंगल है. ओके, सपोज इट्स अ A,
इट्स अ बी एंड इट्स अ सी। ABC इज अ ट्राइंगल है। अब क्या कह रहा है कि एंगल B जो है इट्स अ 45 डिग्री एंड एंगल C जो है इट्स अ 75 डिग्री। आपको ट्राइंगल ड्रॉ करना है। आपको कह रहा है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ दिस एंगल, इस एंगल का मेजर क्या होगा, मतलब एंगल A इक्वल्स का मेजर क्या होगा, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल A। एंड ऑल्सो इज गिवन दैट कि BC इक्वल्स टू 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर। ओके, तो BC इक्वल्स टू 4.8 सेंटीमीटर। ओके, अब लुक, so it's the same concept. First of all, we will construct a line which is equal to 4.58 centimeter. 4.8 centimeter is the line. It's a B, mark कर लेंगे B, और ये C. It's a BC is a line which is equal to 4.8 centimeter. तो ये 4.8 centimeter is the BC. BC is the line which is equal to 4.8 centimeter. अब look at this. It B एंगल कितना ड्रॉ करने के लिए कह रहा है 45। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ, अब देखो 45 कितना हो, क्या कैसे ड्रॉ करेंगे, तो विल ड्रॉ फर्स्ट ऑफ ऑल 90 डिग्री। ओके, तो वी विल टेक आर्क, अब यहाँ बैठेंगे 90 ड्रॉ करेंगे। ओके, क्या करेंगे 90 ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट आर्क, अब देखो दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। देखो 90 डिग्री हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए 45। तो ऑब्वियसली जब हम 90 ड्रॉ करेंगे विल ड्रॉ अ लाइन इन डॉटेड फॉर्म, उसको हम लोग क्या करेंगे डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। इट्स अ 90, तो 90 का आधा 45, तो वी विल डिवाइड दिस एंगल इक्वल टू पार्ट्स। तो विल मेजर दिस लेंथ, विल मेजर दिस आर्क एंड कट वन मोर टाइम इज देयर। इधर कट करेंगे, सपोज इधर कट करेंगे, इसको यहाँ कट कर लेंगे, यहाँ बैठाएंगे, यहाँ कट कर लेंगे ऐसे, एंड यहाँ बैठाएंगे, यहाँ कट कर लेंगे ऐसे। अब लोग कर दिस, ये कट हो गया। अब इस लाइन को इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। नाउ विल ज्वाइन दिस लाइन लाइक दैट, नाउ विल ज्वाइन दिस लाइन लाइक दैट। ओके, नाउ द एंगल इज 45 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट, इट एंगल सी 75 डिग्री, इट एंगल सी 75। अब लुक कर दिस 75, तो 75, अब तुम सोचो कि 60 जो फर्स्ट आर्क होता है, जो हम लोग लेते हैं फर्स्ट आर्क, दिस इज इक्वल टू व्हाट, इट्स इक्वल टू व्हाट 60 डिग्री, तो ये 60 है। अब लुक दिस, अगर 60 में हम 15 8 कर दें इट्स 75। ओके, या फिर अगर हम 90 में 15 माइनस कर दें इक्वल टू 75। तो एट एनी कंडीशन यू हैव टू ड्रॉ मे बी 90 और 60। देखो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर 90 ड्रॉ करेंगे किसी भी आर्क लेकर के, सपोज दिस इज, अब इट्स सपोज यहाँ से कट करेंगे, इट्स अ 60। ओके, इट्स अ 60। अब इसको डॉटेड फॉर्म में, इट्स अ डॉटेड लाइन, इट्स अ 90। ओके, इट्स अ 90 डिग्री। अब लोग कर दिस, तो इट्स अ टोटल 60 ना, तो 60 प्लस 15 90। अब यहाँ पे क्या है 30 डिग्री है, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये 90 है, ये कितना है 90 है। अब सपोज करो कि ये एंगल अगर 60 है, नहीं अब लोग कर दिस फिगर, अगर ये एंगल 60 है तो ऑब्वियसली ये कितना है 30। अगर 75 चाहिए तो क्या करेंगे हम, 60 में 15 8 करेंगे, जैसे तुमको यहाँ बताए कि 60 प्लस 15 इक्वल्स टू वाट 75, या फिर 90 माइनस 15 इक्वल्स टू वाट 75। ओके, तो इट्स अ 30 डिग्री, इट्स अ 30 डिग्री। इसको हम लोग हाफ कर लेंगे, तो ये क्या है 30 है, इसको हाफ करेंगे, फिर इसको यहाँ कट करेंगे। जब इसको हाफ कर लेंगे, अब इस लाइन को ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ये कहीं ना कहीं ये लाइन इंटरसेक्ट करेगा। अब लुक कर दिस, दिस इज द एंगल C इज 75 डिग्री, दिस इज द एंगल C इज 75 डिग्री। लुक कर दिस कि बाइसेक्टर ऑफ, देखो दिस एंगल, दिस लाइन दैट मीन्स व्हाट, कि जब हम C से ड्रॉ करेंगे 75 एंड दिस लाइन जब हम एट B पे ड्रॉ करेंगे 45, बोथ लाइन आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। अब दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, दिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, दैट इज द पॉइंट A। तो नाउ द पॉइंट इज A, तो नाउ द ट्राइंगल इज A B and C, this is the triangle, required triangle ABC। अब look at this, this is 75,
दिस इज 45. ओके, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल? तो एज वी नो दैट सम ऑफ थ्री एंगल इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. 180 डिग्री. तो 75 प्लस 45 0 120. अब look at this. The sum of two angles B plus C equals to what? 20. The rest of the angle goes for 60. This is the value of this angle is 60 degree. Okay. You have to construct the triangle and measure the angle by the protractor. इसको लोग चांद बोलते हैं. चांद से इस एंगल को मेजर करोगे. This angle is completely 60 degree after the construction. Okay. This is a simple way to draw a triangle when the sides maybe and angles of a triangle is given. You have to follow the basic steps. Construct an example number third. Example number third. क्या कह रहे हैं? Construct a equilateral triangle. Construct a equilateral triangle whose altitude is 4 centimeter. Okay. अब suppose दैट कि एक triangle दिया हुआ है. It's a equilateral triangle. आपको construct करना है. It's a A, it's a B, it's a C. Okay. नहीं, आपको क्या करना है? ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है. इट्स अ काइंड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. ओके. हुज एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट. तो एल्टीट्यूड मीन्स हाइट. एल्टीट्यूड क्या होता है? इट्स अ वर्टिकल लाइन. इट्स अ वर्टिकल लाइन ऑलवेज क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द अनदर बेस होता है. अब इस लाइन को जहां भी ड्रॉ करेंगे, ये जो लाइन है ये क्या होगा? ऑब्वियसली क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द अनदर लाइन होगा. तो सपोज करो कि ये क्या है मेरा AL. AL is the altitude of the triangle. Sometimes it's known as height of the triangle. AL and what? AL बोल सकते हैं इसको AL. तो AL sometimes altitude. AL TITU D altitude and height. Altitude and height. AL जो होता है वो क्या होता है? It's sometimes known as height और it's altitude which is perpendicular to the base. क्या होता है? Always वो perpendicular to the base होता है. अब look at this. अब इस ट्राइंगल को ड्रॉ करना है और मेरे पास सिर्फ क्या है कि AL इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. बस एल्टीट्यूड गिवन है. तो कैसे ड्रॉ करेंगे इसको? कैसे ड्रॉ करेंगे? बस सिंपल कॉन्सेप्ट. वी डोंट हैव. देखो, अब किसी भी ट्राइंगल को ड्रॉ करने का सबसे दो तरीका, दो ही कंडीशन है. पहला क्या कि व्हेन साइड इज गिवन, व्हेन sides are given. Okay, when sides are given and when angles are given. बस in that case there is no side and there is no angle. तो हम लोग क्या करेंगे? We have the simple step. Okay, we'll take a line. We'll take a line as a base of the triangle. Okay, we'll take a line with any length. किसी भी लेंथ का एक लाइन ड्रॉ कर देंगे हम लोग. किसी भी लेंथ का एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे. अब इसका सेंटर पे सपोज करो मिडिल पे या कहीं भी एक पॉइंट पे O ड्रॉ कर लेते हैं. O मार्क कर दिए. अब यहाँ पे 90 ड्रॉ कर लेंगे. 90 ड्रॉ कर लेंगे. 90 कर लिए. अब इट्स 90 डिग्री यहां ड्रॉ करते हैं. विल टेक अ लाइन एनी लेंथ. किसी भी लेंथ का एक लाइन ले लेंगे. अब यहां पे क्या पे O मार्क कर दिए. अब यहां पे क्या करेंगे? किसी भी आर्क लेकर के 90 बना देंगे. अब लुक एट दिस. $90 हो गया. अब इट्स अ 90 डिग्री. इट्स अ 90 डिग्री. अब इसको हम कंसिडर करेंगे एज अ एल्टीट्यूड. तो दिस इज द L. दिस इज द L. इसको एल्टीट्यूड कंसिडर करेंगे. तो इसका लेंथ कितना है? 4 सेंटीमीटर. तो वी विल टेक 4 सेंटीमीटर विथ फ्रॉम ए स्केल एंड वी विल कट इट. अब सपोज करो दिस इज द कट. यहाँ पे इट्स अ पॉइंट A. इट्स अ पॉइंट A जो एल्टीट्यूड है. तो इट्स अ एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल. इट्स अ एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल. अब हम लोग को साइड डिसाइड करना है कि साइड कैसे निकलेगा.
ओके, तो फ्रॉम द ट्राइंगल प्रॉपर्टीज एज वी नो दैट कि each angle of equilateral triangle is 60 degree, 60 degree, 60 degree, 60 degree. ओके, किसी भी इक्वेटर ट्राइंगल का एक ईच एंगल का तो वैल्यूज होता है, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 60 डिग्री. ओके, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 60 डिग्री. अब लुक कर दिस, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो एंगल का फॉर्मेशन होगा दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 60 डिग्री. एंड सेकंड थिंग इज दैट यू हैव टू मेंशन दिस पॉइंट. ओके, इस पॉइंट को हमेशा याद रखो, ये जो लाइन होता है ना एल्टीट्यूड, ये ऑलवेज क्या होता है परपेंडिकुलर होता है एज वेल एज बाइसेक्टर ऑफ द एंगल होता है, परपेंडिकुलर एज वेल एज बाइसेक्टर ऑफ द एंगल होता है. तो ऑब्वियसली ये जो लाइन है AL इस ट्राइंगल को बाइसेक्ट कर रहा होगा. ये जो एंगल है, ये जो लाइन है AL इस ट्राइंगल का एंगल A, दैट मीन्स ये जो एंगल A है इसको बाइसेक्ट कर रहा होगा. तो ऑब्वियसली जब बाइसेक्ट करेगा तो होल वैल्यू इज 60, तो दिस वन इज 30 डिग्री एंड दिस वन इज 30 डिग्री. ओके, मतलब यहाँ पे ये जो पॉइंट A है यहाँ पे ये 60 का एंगल बनेगा. अब सिंपल सा लॉजिक लो, देखो मान लेते हैं एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसके पैरेलल. ओके, तो ऑब्वियसली कितना हो जाएगा 90 और ये कितना हो जाएगा 90. तो मतलब क्या करेगा, वो जो लाइन AL है, AL जो मेरा लाइन है उसको बाइसेक्ट करेगा किसको, एंगल A को इन इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. अब लोग कर दिस, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे. नहीं, जो पैरेलल टू क्या होगा, इस लाइन का पैरेलल होगा. मान लेते कुछ भी, ये PQ इज द लाइन था, अब ये MN कोई लाइन ड्रॉ कर दिया जो पैरेलल है. अब लोग कर दिस, अब इस पॉइंट को हम लोग E मान लिया, जो तीसरा वर्टेक्स है किसका, ट्राइंगल का. अब लोग कर दिस, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी भी आर्क ले लेंगे इस तरह से. अब इसको कट कर लेंगे, ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा. अब कर दिस कि फर्स्ट आर्क जो होता है वो 60 कितना का होता है, 60 का होता है. कितना बार बता चुके हैं हम, फिर से बता रहे हैं. देखो इस पॉइंट पहला आर्क ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये जो एंगल बनेगा 60 बनेगा. अब लोग कर दिस, अब सपोज दैट दिस इज द 90, तो ऑब्वियसली दिस वन इज 30 डिग्री. अगर ये 60 है तो ये कितना बनेगा, ये टोटल 90 है तो ये 30 बनेगा. अब लोग कर दिस, अगर ये 60 है, ये वाला पोर्शन अगर 60 है, ये डॉटेड कर देते हैं, ये वाला एंगल अगर 60 है तो ये कितना होगा, ऑब्वियसली 30. अगर इधर का एंगल दिस वन इज 60 डिग्री, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये 30. अब हम क्या करेंगे, 30 वाला लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, इस तरह से. अब लोग कर दिस, अब ये लाइन क्या करेगा, जो 30 डिग्री का लाइन होगा फ्रॉम A, द लाइन मतलब जो 30 डिग्री का लाइन होगा कहाँ से, फ्रॉम A से, वो क्या करेगा, PQ को कहीं ना कहीं पे कट करेगा, PQ को कहीं ना कहीं कट करेगा. और जिस पॉइंट पे कट करेगा दैट इज द पॉइंट B एंड दैट इज द पॉइंट C. नाउ ABC इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल. ओके, so you have to practice, okay, you have to practice on the questions. Okay, you just try to draw and just send me your solution. Okay, and you have to try NCERT book from your NCERT book. Okay, and also RS Agrawal. If there is any confusion, you can text me on your WhatsApp group. Okay, thank you for watching this video and have a nice day.